Assalamu alaikum all of you. Hope you are doing well and Eid Mubarak. Hopefully कि आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी. Just type a message in the group कि we have started the class now. I want your assistance. Just write down the message in the class. English class has started in WhatsApp group. Okay. We'll wait 1 or 2 minutes, then we'll start our lecture. Okay. Meanwhile, just text in the group. We have started classes. Uh, just recall the previous lecture if you remember. So we have talked about types of sentences, remember? And in that section, I've told you we'll be learning conjunction in the next class. So our today's topic is conjunctions. Can anyone tell me what are conjunctions? Just write down in the chat box, please. What are conjunctions? Any idea? Okay, in a simple sense, you can say that join two sentences. A very simple definition, na? Very simple definition you can call it, but we will learn it in detail today. So we'll talk about in detail. आज की क्लास में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे इस पर, ठीक है? Yes, word that connect two clauses, हाँ, और specify करना चाहे separate or join two sentences. Not separate, just join. My voice is very clear to you all. Can you hear me clearly? Have someone texted in the group? Wait for a while. So are you getting my screen, all of you? Okay, let's start a topic. Okay, now we are going to continue our class. Today our topic is conjunctions. Okay, so let's move on. I'm going to start. Conjunctions. You know what? We have already talked about some of the पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना? हमने नाउन कवर किया, प्रोनाउन कवर किया, एडजेक्टिव पर बात की, वर्ब पर बात की, preposition. Now we are just talking about conjunction, one of the important part of parts of speech, है ना? Remember, हमने ये तमाम चीजें डिस्कस की हैं. इसमें एक और पार्ट है हमारे पास conjunction का, ठीक है? Now let's move on. Definition, basic definition की अगर हम बात करें, the basic definition.
The basic definition of part of a speech. The basic definition. What is the basic definition here? Conjunction are the words that join words or group of words. है ना? Conjunction are words that join words or group of words. There are two main types. Last time हमने कुछ conjunctions देखे भी थे जब मैं आपको types of sentences पढ़ा रहा था, kinds of sentences पढ़ा रहा था. We have discussed a list of conjunctions, है ना? कोई मुझे बताएगा, कैन यू टेल मी सम ऑफ द कंजंक्शंस? अभी हम कोऑर्डिनेटिंग और सब कोऑर्डिनेटिंग की बात नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कंजंक्शंस. तो थोड़े टेक्स्ट करें जरा, व्हाट आर कंजंक्शंस? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स प्लीज. What are conjunctions? Tell me some of the conjunctions here. You remember fanboys? To or in? Amna Ijaz, are you sure? If two or in conjunctions, what about it cannot be? They are preposition, Amna. They are preposition. Yes, but, so, or. Shaista Rija, you're right. Hamza Khan, yes. Fanboys, and, है ना? अब देखें इसको हम दो तरह से, ओके फाइन, दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, है ना? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको हमने नाम दिया था किसका? फैन बॉयज का. किसका नाम दिया था? फैन बॉयज. आज हम बहुत डिटेल में इस पर बात करने वाले हैं. विल डिस्कस इट इन डिटेल. आज हम डिटेल में बात करेंगे इस पर कि क्या हैं ये और क्या. देख लीजिए कंजंक्शंस बहुत सिंपल. देखिए इस ये वेरी सिंपल डेफिनेशन है. This simplest definition is conjunctions are words that join words or group of words. Some of you were telling me sentences, some of you were telling me clauses, है ना? तो अगर हम सिंपल सेंटेंसेस में सिंपल डेफिनेशन में बात करें, वेरी सिंपल मैनर में बात करें, तो कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस ऐसे अल्फाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं. ऐसे अल्फाज जो वर्ड्स को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करें, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं कंजंक्शंस. अब अगर हम कंजंक्शंस की मेन टाइप्स की बात करें तो वो क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये दो टाइप्स के कंजंक्शंस हमारे पास पाए जाते हैं. सो लेट्स मूव ऑन. अब बात कर रहे हैं किसकी? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की. किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. लेट्स सी. एंड, और, बट, फॉर, नॉर, येट, है ना? ये सब क्या कहलाते हैं? जो हमने फैन बॉयज पढ़े ना, फैन बॉयज जो पढ़े, उन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. दीज कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, phrases and clauses of equal value. ये बात बड़ी अहम है. equal value का क्या मतलब है यहाँ? These conjunctions connect words, phrases or and clauses of equal value. Can anyone tell me what does that mean? आपको अगर याद हो, हमने एक टाइप पढ़ी है compound sentences की, है ना? compound sentences की, complex sentences की, simple sentence की, compound complex sentences की. जरा मुझे बताएंगे ये वाली बात किस चीज को बता रही है? ये एक टाइप ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस को हाईलाइट कर रही है. दीज कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल वैल्यू. कोई मुझे इसको थोड़ा डिफाइन कर सकता है? कौन सी टाइप को फोकस किया जा रहा है यहाँ? टाइप ऑफ सेंटेंसेस में, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में कौन सी वाली टाइप फोकस हो रही है यहाँ? कैन एनीवन टेल मी? कैन एनीवन टेल मी कौन सी वाली टाइप और कौन सी वाली जो है वो फोकस हो रही है? यस प्लीज कमेंट. कौन सी टाइप फोकस हो रही है इसमें? कैन एनीवन टेल मी? इस बात में जरा गौर से देखिएगा, क्या बात की जा रही है? बड़ा आसान है. दीज कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल वैल्यू. व्हाट इज बीइंग फोकस्ड हियर? yes, absolutely, compound sentence. Look at this. क्या मतलब है इसका? आगे ये देखिएगा जनाब, क्या बात की जा रही है इसमें. लेट्स सी. Wait for a while.
ओके, राइट 3 सेंटेंसेस दैट इंक्लूड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, अभी आपने लिस्ट तो देख ली कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। अब जरा सा एक छोटी सी प्रैक्टिस करें। 3 सेंटेंसेस, चलें आप 3 नहीं लिखें, एक सेंटेंस कमेंट में लिखिए, जरा चैट बॉक्स में लिखिए। एक सेंटेंस लिखिए जिसमें आपने कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करना है। देन वी विल टॉक अबाउट डू दे कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल वैल्यू। ये सवाल करें अपने आप से, पहले एक सेंटेंस फॉर्म करें जिसमें आपने क्या यूज किया हो, आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज किया हो, एंड यूज किया, और यूज किया है ना, या बट यूज किया। ठीक है, ऐसे ऐसा कोई सेंटेंस फॉर्म करें और उसके बाद ये इस सवाल का जवाब दें अपने आप को, डू दे कनेक्ट वर्ड्स, phrases and clauses of equal value? Ask yourself, write down in the chat box। मैं आपके sentences पढ़ता जाता हूं, just write down कुछ sentences अपने chat box में लिखिएगा, एक सेंटेंस। He was right and I was wrong। अब जरा गौर कीजिएगा, हमने इरशाद के सेंटेंस को, I love chocolate and ice cream as well। शाइस्ता रिजा, I love chocolate and ice cream as well। जरा इसको गौर कीजिएगा, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस आ रहा है क्या यहाँ? ऊपर देखें, he was right and I was wrong। हमने बात की कंपाउंड सेंटेंस की ना। He was very tired but he didn't give up। Very good हमजा। अब जरा शाइस्ता इन दोनों सेंटेंस पर गौर कीजिएगा, हमना और हमजा वाले सेंटेंस पर गौर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी, हमने जो सिंपल सेंटेंस की टाइप पढ़ी थी और कंपाउंड सेंटेंस की, देयर वर सच डिफरेंसेस, ये जरा जहन में रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, he was right and I was wrong। अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें, he was very tired but he didn't give up। जरा इन सेंटेंसेस को देखिए, क्या कहते हैं? क्या ये जो सेंटेंस हैं ये कंप्लीट सेंटेंसेस हैं? अगर मैं इसको और आसान अल्फाज में कहूं, क्या ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं? जरा अपने आप से सवाल करें, है ना। यहां देखें, यहां ये जो बात की जा रही है, डू दे कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल वैल्यू। तो देखें, he was tired but he didn't give up। he didn't give up, he was tired। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, है ना। You complete your assignment and we will help you। देखें, कंप्लीट क्लॉजेस आ रहे हैं। The professor entered the class and everyone stopped talking। देख रहे हैं आप, सेंटेंसेस देखें, कंप्लीट सेंटेंसेस आ रहे हैं और इसमें क्या आ रहे हैं? इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ रहे हैं। लेट्स, अब अगली स्लाइड आपको और ज्यादा हेल्प करेगी, जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में इस्तेमाल होते हैं। लेट्स सी, लुक एट दिस। Independent clauses, clauses of equal value are called independent clauses and cannot stand on their own as separate sentence। Let's see here, wait for a while। Give me a second। All of you are here ना, मैं अब स्क्रीन वो लॉक कर रहा हूँ, रूम लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। I am sharing with you again। Okay। जी जनाब, मैं दोबारा शेयरिंग कर रहा हूं आपसे। Now let's see, independent clauses of equal value are called independent clauses and can stand on their own as separate sentences। अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में we have talked about in details, है ना, हमने बहुत डिटेल में बात की थी kinds of sentences में, और उसमें independent clauses की भी बात की थी। अब ये जो कंजंक्शंस है ना, ये बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं उस चीज से। तो यहाँ क्या बात की जा रही है? अभी हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। कौन से कंजंक्शंस की? और अगर आप ये डेफिनेशन देखें पीछे वाली, तो वो क्या बता रही है आपको? ये बता रही है कि ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं वो सेंटेंसेस को ऐसे ज्वाइन करते हैं
के इक्वल वैल्यूज है ना, क्लॉजेस ऑफ इक्वल वैल्यूज, दीज कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड्स, phrases and clauses of equal values. तो इंडिपेंडेंट टू क्लॉजेस को मिलाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, और दैट इज द लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसको हमने फैन बॉयज के रेफरेंस में याद किया हुआ है। ठीक है, तो यहां ये बात समझ आई कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जो ज्वाइन किया जाता है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से ज्वाइन किया जाता है। लेट्स सी, अब इस एग्जाम्पल पर जरा गौर करें। जॉन इज रनिंग इन दिस रेस एंड आई एम कैरिंग हिज वाटर बॉटल। अगर देखें तो ईच क्लॉज कैन स्टैंड अलोन। जॉन इज रनिंग इन दिस रेस, आई एम कैरिंग हिज वाटर बॉटल, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और किसकी मदद से ज्वाइन हो रहे हैं? ज्वाइन हो रहे हैं एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। ये रहा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, है ना, एंड से ये क्या हो रहे हैं? ज्वाइन हो रहे हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये खुद क्या है? दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जॉन इज रनिंग इन दिस रेस, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आई एम कैरिंग हिज वाटर बॉटल, है ना। और ये किसकी मदद से ज्वाइन हो रहे हैं? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन हो रहे हैं। तो यहां हमें क्या लगाना था? एंड लगाना था, एक कंजंक्शन एंड, ठीक है। दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर हो, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, तो इस केस में हम क्या लगाते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, और ये किसकी मदद से ज्वाइन हो रहे हैं? एंड की मदद से ज्वाइन हो रहे हैं। ईच क्लॉज कैन स्टैंड अलोन। जॉन इज रनिंग इन दिस रेस, आई एम कैरिंग हिज वाटर बॉटल। तो व्हेन, अब बात क्या समझ आई? कंजंक्शंस कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस ऑफ इक्वल वैल्यूज, है ना। तो लेट्स सी, ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं और ज्वाइन हो रहे हैं, तो इस वजह से हम इसे क्या कह रहे हैं? इसको हमने फैन बॉयज में रखा। ओके ओके ओके, ठीक है। अभी शो हो रही है ना सबको स्क्रीन? ठीक है। कायनात सिकंदर आ गई, स्क्रीन आ गई? कायनात, डिड यू गेट द स्क्रीन? बाकी सबको स्क्रीन नजर आ रही है? जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट्स प्लीज। ओके ओके ओके, फाइन, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गई है सबको, होपफुली समझ आ गया है कि जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करेंगे तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाएंगे। ये बात समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे कुछ और एक्सरसाइज भी करेंगे, क्लियर? ओके जनाब, लेट्स मूव ऑन। नाउ अब देखिएगा, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, किसकी बात करें? सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहले हमने बात की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, अब बात कर रहे हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, है ना। अब ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस, इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस, है ना। जरा कुछ एग्जांपल देंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और दूसरा क्या हो सकता है? लेट्स सी, इसमें देखिएगा अभी एग्जांपल। इनफैक्ट द क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फॉर इट्स मीनिंग। डिपेंडेंट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सिंगल सेंटेंस। तो इस पर भी हम बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। इस टॉपिक को बाद में रखने का सेंस ही यही था कि पहले आप अच्छे से सेंस जनरेट कर लें कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, ताकि आपको कंजंक्शंस को पुट करने में, सही जगह पर सही कंजंक्शंस लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यही वजह थी कि पहले हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के टॉपिक को डिस्कस किया।
और उसके बाद फर्दर हम क्या बात कर रहे हैं, कंजंक्शंस पर बात कर रहे हैं, और कंजंक्शंस में हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स, अब यहां जो डेफिनेशन, यहां जो बताया जा रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दोबारा दिखा दूं, कायनात सिकंदर, अच्छा ठीक है, मैं अभी शो कर देता हूं आपको। ये देखिएगा, आई एम जस्ट बैकिंग इट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इंक्लूड्स, ठीक है, ये वो कंजंक्शंस हैं जिस पर हम बात कर रहे थे कि हमने पीछे भी पढ़कर आए हैं, हम क्या पढ़कर आए हैं जनाब के फैन बॉयज, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब इन ये जो कंजंक्शंस है ये दो सेम क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करते हैं, इक्वल वैल्यूज को ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है, उनको हमने क्या कहा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहा। उसके बाद हमने बात की कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, ये छोटा सा रिकॉल था जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, और इस तरह के सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, जॉन इज रनिंग इन दिस रेस एंड आई एम कैरिंग हिज वाटर बॉटल। कोई बताएगा मुझे ये सेंटेंस कौन से टाइप का सेंटेंस है, जॉन इज रनिंग इन दिस रेस एंड आई एम कैरिंग हिज वाटर बॉटल, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इट? वेरी गुड मोहम्मद अहमद, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट, ठीक है, वॉज नहीं लगाइएगा। वेरी गुड हमजा, हमना, महा और उमैमा कंपाउंड सेंटेंसेस की टाइप है ये। यस यू आर राइट, कंपाउंड सेंटेंसेस की टाइप है। अच्छा एक मिनट, the speaker was delayed because he was stuck in traffic. Yes, you're right. ठीक है, now let's see here. Sir, this okay. When I was a child, I used to play a lot. ठीक है, तो these are the example of, ठीक है, तो हमने यहाँ ये सीखा कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो ये भी, ये देख रहे हैं आप, ये कंपाउंड सेंटेंस की एक एग्जांपल थी। अब हम बात कर रहे हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की, दोबारा कंटिन्यू करते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस है ना, और डिपेंडेंट का मतलब क्या है, कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सिंगल सेंटेंस, है ना, कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सिंगल सेंटेंस, यानी बात अधूरी लगती है, कुछ ना कुछ मिसिंग लगता है, कुछ चीज की कमी लगती है ना, तो वी शुड फाइंड आउट कि क्या चीज कम है या उसका रीजनिंग होता है कुछ ना कुछ। ऐसे कंजंक्शंस जो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ होते हैं उन्हें हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग। तो ये बात समझ आ गई कि क्या डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ सिंगल सेंटेंस। नाउ लेट्स सी सच एग्जांपल्स। In fact, the clause is dependent on the rest of the sentence for its meaning, है ना? Let's see here. Dependent clauses. Dependent clauses cannot stand alone as a single sentence. The clause is dependent on the rest of the sentence for its meaning. ये देखो, let's see here. See this. Since I will not be home, है ना? Since I will not be home, Tina will answer the phone. Let's see. इसमें आप ये देख रहे हैं, ये वाला जो part है, this is what? This is dependent clause. देखें, doesn't make sense by itself. नजर आ रहा है? Doesn't make sense by itself. It is dependent on the rest of the sentence for its meaning. Since I will not be home, Tina will answer the phone. है ना? तो ये क्या है? Since I will not be home, ये dependent है clause, क्योंकि बात अधूरी है। और इसमें conjunction क्या है? जरा जल्दी से बता दीजिए conjunction क्या है इसमें? What is conjunction here in this sentence? What is conjunction here? Quickly answer. Everyone, what is conjunction here in this sentence?
और देख रहे हैं वो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आ रहा है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चूंकि मैं घर पर नहीं होऊंगा, टीना फोन के आंसर देगी। तो इसमें सिंस जो है वो किस मायनों में इस्तेमाल हुआ है? कंजंक्शन के मायनों में इस्तेमाल हुआ है, जो क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहा है। लेकिन उसमें एक क्या है? डिपेंडेंट है और दूसरा इंडिपेंडेंट है। क्लियर हुआ? सेंस समझ आया सबको? तो इस सेंटेंस में सिंस जो है वो सबऑर्डिनेटिंग, याद रखिएगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। यस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सिंस जो है वो, सायरा परवीन, इसमें कंजंक्शन है, सिंस कंजंक्शन है इसमें, ठीक है। और वो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ लगा हुआ है और अगला क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये कंजंक्शन जिसके साथ आ रहा है तो बात अधूरी लग रही है। डिपेंडेंट, सिंस आई विल नॉट बी होम, क्योंकि मैं घर पे नहीं होऊंगा, चूंकि मैं घर पे नहीं होऊंगा, तो मतलब आगे कुछ होगा ना भाई, है ना। तो आगे क्या है? टीना विल आंसर द फोन, टीना फोन के जवाबात देगी या फोन का कॉल रिसीव करेगी। तो ये जो है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कौन सा वाला? टीना विल आंसर द फोन। और ये वाला डिपेंडेंट है। तो अब आपने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या कर रहा था? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा था। जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या हो रहा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक डिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज आ रहा है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की बड़ी लंबी लिस्ट होती है, डिपेंड करता है कि किस सेंस में आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। वी विल टॉक अबाउट इट। हाँ हाँ, डेफिनेटली मैं ये आपको शो करूंगा, बिल्कुल। लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिल्कुल बहुत लंबी लिस्ट है इसकी एज कंपेयर टू कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस तो चंद एक हैं और वो याद भी हो जाते हैं, लेकिन ये इसकी लिस्ट एक लंबी लिस्ट है। आई विल शो यू, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अब आसान, अगर इस जगह तक अगर मैं सम अप करूं अपनी गुफ्तगू को, तो कुछ ये बनेगा कि जनाब अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करना हो आपने, तो आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है। एम आई क्लियर? और अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज हो, अनइक्वल वैल्यूज हो, अनइक्वल फ्रेजेस हो, अनइक्वल क्लॉजेस हो, तो उनको ज्वाइन करने के लिए आपको सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन लगाना होगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? यहां तक की बात मेरी जो मैंने सम अप की है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? यस यस मारिया, मोस्ट ऑफ द टाइम। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब देखें, यहां देखें, मोस्ट कॉमन, मैंने क्या वर्ड यूज किया है जरा देख लें पहले। मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमनली यूज्ड मैंने कहा है यहां, ठीक है ना, मोस्ट कॉमनली। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहलाते हैं। उसकी लिस्ट भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन उसमें से ज्यादातर और जो मोस्ट कॉमन है तो वो क्या होते हैं? वो ये वाले होते हैं, मोस्ट कॉमनली, ठीक है। ये वाले ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं, ये ज्यादातर यूज होते हैं, ठीक है। अभी यस कायनात, डिड यू गेट द लिस्ट? ये एक शॉर्ट लिस्ट है जिसमें हमने जो ज्यादातर, जो आम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनको हमने फोकस किया है ना। जरा कैन यू ट्राई सम ऑफ द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ दीज? जरा आप इनसे ट्राई कर सकते हैं कुछ सेंटेंसेस? कुछ सेंटेंसेस ट्राई करें जिसमें आप ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करें। लेट्स ट्राई सच सेंटेंसेस जिसमें ये लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस जो है वो आप यूज करें प्लीज। कोई से भी सेंटेंस बताएं जिसमें, नॉट नेसेसरी हम ना, कॉमा की मदद से सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट के साथ आएगा, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आएगा हम ना, ठीक है।
अब ये नहीं कि पीछे हो या आगे हो। जैसे हमने कंडीशनल पढ़ा था, कंडीशनल में हमने दो तरह के सेंटेंसेस पढ़े थे, जिसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बीच में भी आ रहा था और शुरू में भी आ रहा था। लेट्स सी, मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर कर लेता हूं यहाँ, तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। नॉट नेसेसरीली कि हम कह दें कि भाई बीच में आता है या एंड में आता है, नॉट नेसेसरली। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक सेंटेंस शो कर रहा हूं, देखिएगा। बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, इफ यू वर्क हार्ड, जो आपने कई बार पढ़ा होगा, यू विल सक्सीड। ठीक है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। अब अगर आप देखें तो इसमें जो कंजंक्शन आया है वो कहां आया है? शुरू में आया है। क्लियर हो गया? शुरू में आया, इफ यू वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल सक्सीड। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ, अब मैं ये, आप ये नहीं कह सकते कि ये हमेशा शुरू में आएगा। आप इस सेंटेंस को इस तरह भी लिखते हैं, लुक एट दिस, द सेकंड वर्जन ऑफ इट, यू विल सक्सीड। अब इफ यू वर्क हार्ड, अब देखें यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ है वो दरमियान में आ रहा है, और यहाँ क्या आ रहा है? शुरू में आ रहा है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। सेंस क्या है? द सेंस इज कि ये आएगा किसके साथ? मोस्टली ये डिपेंडेंट क्लॉज के साथ आएगा, है ना। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये यू विल सक्सीड तो कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ नतीजा निकलना चाहिए ना भाई उसका। तो द सेंस इज दैट कि ये बीच में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है। यस, कायनात आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इफ यू कॉल हिम ही विल डेफिनेटली कम, तो यहाँ देखें शुरू में आ रहा है। हाँ, आई ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन। ठीक है, बिफोर यू गो टू स्लीप मेक श्योर योर ब्रश श्योर टू ब्रश योर टीथ। टू आएगा यहाँ हमजा खान, बिफोर यू गो टू स्लीप मेक श्योर टू ब्रश योर टीथ, मेक श्योर यू ब्रश योर टीथ। ठीक है, ओके फाइन, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई। अभी आपको सेंस समझ आ गया कि अब अगर हम इसको सम अप करें तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज को और इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करता है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। इस तरह हम इसको समराइज कर सकते हैं। ऑल दो का मतलब क्या है? व्हाट डज दैट मीन? although he was late, but he caught the train. Although he was late, he caught the train. हालांकि वो देर से आया था लेकिन फिर भी उसे ट्रेन मिल गई। Although, हालांकि, I still went to meet, although I had met him a week ago. Yes, सही है, बिल्कुल सही है। She will get a promotion because she has proved her efficiency। ने, हाँ, her efficiency, तुम लड़की की बात कर रही हो, she की बात कर रही हो यहाँ। ठीक है, तो she will get a promotion because she has proved her efficiency। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड ट्राई। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम जब सेंटेंसेस में आपको सिलेक्ट करना हो कोई वर्ड, आपको सेंटेंस दिए जाएं और उसमें आपको सही जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, उसको अगर सिलेक्ट करना हो तो यू मे सिलेक्ट इट इजीली इफ यू हैव नॉलेज। ठीक है, अगर आपको ये चीजें पता होंगी तो आप सही ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। Yes, very good. Although he didn't study for exam, he got the maximum marks. Although she was ready to go, but she couldn't go. Very good. Because का मतलब क्या होता है? What does that mean? Because से भी such sentence बनाइए, एक sentence because से बनाइए। Let's try because. चलें, मुख्तलिफ इसमें ये जो लिस्ट है इसमें से कोई भी सिलेक्ट करें और सेंटेंसेस फॉर्मेशन करें ना, सीक्वेंस ना में ना भी चलें तो बात हो जाएगी। वी कुड कवर अप ऑल। लेट्स कवर अप। यस, I'm late because it was raining। ठीक है, आगे as while until whether since। अच्छा, weather और if
एक ही मायनों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। वेदर, इफ की जगह आप वेदर भी लगा सकते हैं। हम डायरेक्ट नरेशन का एक टॉपिक है, वो आपको इंशाल्लाह सर जो है अपने सर यासीन पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो वेदर जो है, जिस जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हो तो आप इफ लगाते हो या वेदर लगाते हो कंफर्मेटरी क्वेश्चन में। तो वेदर और इफ, तो ये इट कैन बी यूज्ड इन द सेम मैनर, ठीक है। Since, after, so that, when, तो you have got a list of these words। और ये क्या हैं सारे के सारे, ये सारे कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। Because he woke up late, he missed his exam. I have to go there because she is calling me. I love to go to college because I like to see my friends. Very good. अब आगे as का बनाइए। Because the guest had arrived, I didn't go to the party, ठीक है, very good। Whether, until, since, after, so that, when। Okay janab, you can go with us when you complete your work, when you complete, ठीक है। हमने just complete, when you complete your work, तुम हमारे साथ जा सकते हो जब तुम अपना काम, she's as perfect as she can be। Yes, absolutely। ये एक फिगर ऑफ स्पीच भी है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सिमिली, ठीक है। सिमिली के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे शी इज एज फास्ट एज अ लेपर्ड, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स प्रैक्टिस, ठीक है। जी जनाब, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट क्लॉजेस, जो बात हमने अभी बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली और मैंने आपसे ये प्रैक्टिस भी करवा ली है। यू डिड नॉट प्रैक्टिस विद योर पार्टनर बट द होल क्लास, ठीक है। आपने पूरी होल क्लास के साथ प्रैक्टिस की है। come up with at least 3 examples। हमने तो बहुत सारी examples ले ली of sentences that include subordinating conjunction that introduce dependent clauses, ठीक है ना। तो हमने इसको बहुत डिटेल डिस्कशन कर लिया इस पर और ये प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। टेक फ्यू मिनट्स, ठीक है, टेक अ फ्यू मिनट्स और टू प्रिपेयर फॉर द कंजंक्शन क्विज, ठीक है। अब जरा जल्दी से ये क्विज वगैरह जो आप लोग अभी मतलब जो हमने कंजंक्शंस पढ़े हैं उनको जरा सा रिकॉल कर लें। उसके बाद आई विल कनेक्ट यू, आपको आपके सामने एक क्विज शो होगा और आपको वो सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है इसके साथ और आप बहुत अच्छे से इसको सेंस कर रहे हैं तो यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम। आप बहुत अच्छे से वो एक्सरसाइजेस भी कर पाएंगे। जस्ट रिकॉल द थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। अभी जो हमने सारी चीजें डिस्कस की हैं उनको जरा सा रिकॉल कर लें ताकि जब आपके सामने क्विज आए तो फिर आप बड़े आसानी से उसका आंसर दे सकें, ठीक है। यू वोंट गेट एनी प्रॉब्लम, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यस प्लीज, हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, शैल वी मूव ऑन। अभी जो हमने आपको लिस्ट शो की है उन लिस्ट को आपने देख लिया। शी वर्कड एज अ टीचर व्हेन शी वाज अ स्टूडेंट। यस, you have to be here until I reach here। very good, she is हाँ बिल्कुल perfect। मुनीब हसन and उम्मे हानी, great, very good। so let's move on। जी जनाब, look at the list।
तो हम क्या बात कर रहे थे? लुक एट दीज सेंटेंसेस. Find the conjunction in the following sentences. Label C for coordinating and S for subordinating. ठीक है? लेबल सी. अब आपके पास इस वक्त लेबल तो नहीं कर सकते आप, लेकिन आप मुझे वो कंजंक्शन जरूर बता सकते हैं जो सेंटेंस में मौजूद है. ठीक है? अब आपने इसके रीजंस भी बताने हैं. ठीक है? इसको आपको रीजंस भी बताने हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज है सेंटेंस में या इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आपने ये भी साथ में बताना है मुझे. नंबर वन का तो पहले बताएं. नंबर वन का पहले बताएं. आप तो बड़े फास्ट चल रहे हैं भाई. नंबर वन का पहले बताएं. क्या है? क्या है इसमें? ये भी तो बताइए क्या है इसमें. ओके, वन एंड और सी. यस यू आर राइट. एंड है इसमें. वन वन में जो है देखिए, यू लिसन टू द मैन्स स्टोरी and reported it to the policeman on duty, है ना? Reported it to the policeman on duty. He listened to the man's story and reported it to the policeman on duty. ठीक है? तो ये इसमें coordinating conjunction आ रहा है और independent clauses आ रहे हैं. ठीक है? और C हम इसको represent करेंगे. अच्छा जनाब, I haven't seen my brother since he left for college. Number two. Number two में बताइए please. Number two में क्या है? वाह, आप लोग तो रेस लगाई है आप लोगों ने. 4 पर भी पहुंच गए, 3 पर भी पहुंच गए. ओके, वेरी गुड. सेंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. नंबर 3. योर आंट और योर अंकल विल पिक यू अप फ्रॉम स्कूल टुडे. क्या होगा? योर आंट और योर अंकल. वेरी गुड. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर रहा है और इक्वल फ्रेजेस हैं. वेरी गुड, शाबाश, एक्सेलेंट. नंबर 4. Tom, Jane, Sue and Tim will be going on a trip. Very good. Coordinating conjunction है, एक जैसे phrases को join कर रहा है. ठीक है? Tom, Jane, Sue and Tim नाम है और एक जैसे हैं, तो उसमें conjunction coordinating हुआ और क्योंकि same phrases को join कर रहा है. I remember the old school book, for it was once mine. है ना? For it was once mine. I remember the old school book. For it was once mine. ठीक है? दोनों independent clauses हैं, coordinating conjunction है और for इसमें conjunction है, coordinating. Sarah did not feel well, but she went to class anyway. But she went to class anyway. Number 6. But है और coordinating conjunction है. सही है, बिल्कुल correct. Number 7. Although the man was hungry, he never said a word to anymore. क्या है जनाब? Subordinating conjunction है और है क्या conjunction? Although. हालांकि वो शख्स बहुत भूखा था, लेकिन उसने किसी से एक लफ्ज भी नहीं कहा. तो इसमें क्या हुआ? Although the old man was hungry, dependent clause है और इसका रिजल्टेंट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, he never said a word to anyone. अच्छा जनाब, उसके बाद I think wait for a while. I think I heard that on the television or radio, although I'm not sure. ठीक है? इसमें भी क्या है? इसमें भी नंबर 8 जरा सही से बताइए, देख लें. इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, इसमें दो हैं, गौर से देखिए. इसमें दो हैं, दो हैं इसमें. एक कोऑर्डिनेटिंग भी है और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग भी है. यस, और ऑल दो. यस मारिया, यू आर राइट. ठीक है? आई थिंक आई हर्ड दैट ऑन द टेलीविजन और रेडियो. तो ये तो क्या हो गया? ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया. और टेलीविजन और रेडियो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया. उसके बाद ऑल दो आई एम नॉट श्योर, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया और आई एम नॉट श्योर डिपेंडेंट क्लॉज में आ गया. ठीक है? I think I heard that on the television or radio, although I'm not sure. तो इसमें दोनों आ गए, सबऑर्डिनेटिंग भी आ गया और कोऑर्डिनेटिंग भी आ गया.
यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? लेट्स सी. In a newspaper or magazine, find an article that interests you and is more than 10 sentences in length. Tape the article to a clean sheet of paper with a yellow pencil or pen. वैसे आप इसको जैसे करना चाहें, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाइए और कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो, उसमें देखें कि कंजंक्शंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए हैं और कंजंक्शंस की टाइप्स कौन कौन सी हैं, ठीक है, ताकि आपको ये फिल अप करना आ जाए प्रॉपरली. क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ये देखिएगा, मैं कुछ और कंजंक्शंस आपको बता रहा हूं, ठीक है. अच्छा, मैं इसकी कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको रेफर कर देता हूं ताकि आप इसको सॉल्व भी कर पाएं. आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं. ऑनलाइन कंजंक्शंस की कुछ एक्सरसाइजेस मैं आपको रेफर कर देता हूं. लेट्स सी, आई एम मूविंग फॉरवर्ड. आई एम शेयरिंग वन मोर स्क्रीन विद यू ऑल, ठीक है. अच्छा, आपके पास आ रही है, अभी स्क्रीन आ रही है आपके पास? ये देखिएगा, एक ये वाली वेबसाइट है, इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं ग्रुप में, ठीक है. आपको ऑनलाइन बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाएंगी, ठीक है. ये मैं कुछ लिंक शेयर कर रहा हूं ग्रुप में. एक ये वाला एक क्विज है आपके पास. आई एम जस्ट शेयरिंग दिस विद यू. एक ये वाली एक्सरसाइज है, ठीक है. और यहां एक और है. ये देखिएगा, आई शेयर्ड 3 डिफरेंट लिंक्स विद यू, ठीक है. अच्छा, आमना व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर कर देता हूं. ये लीजिएगा, ये भी मैंने शेयर कर दिया, ठीक है. और एक ये, अगर इफ यू आर यूजिंग लैपटॉप और कंप्यूटर तो अभी स्टार्ट करें जल्दी से, और लेट मी शेयर करें अपना एक्सपीरियंस ना, ठीक है. यूजिंग इंग्लिश ग्रामर डॉट कंजंक्शन यूजिंग, अच्छा ये 2 बार यूजिंग इंग्लिश आ गया, कंट्रोल सी. ये लीजिएगा, ठीक है. ये सब मैंने आपसे चलें जनाब, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं. चलें, लेट्स ट्राई. आई वॉज इल डैश आई डिडंट गो टू स्कूल. क्या होगा? व्हाट डज दैट मीन? क्या आना चाहिए यहाँ? आंसर मी क्विकली. आई वॉज इल, आई डिडंट गो टू स्कूल. अच्छा, 2 मुख्तलिफ आंसर आ रहे हैं, सो और बिकॉज. सो क्यों, बिकॉज क्यों आ रहा है? जरा रीजन बताएंगे मुझे, जबकि सही आंसर तो सो है इसका. लुक एट दिस करेक्ट आंसर. देखिए ना, आई वाज इल सो आई डिडंट गो टू स्कूल. मैं बीमार था इसीलिए मैं स्कूल नहीं गया. सो इज द राइट आंसर, ठीक है. बिकॉज तो रीजनिंग के लिए आता है. यू शुड गेट योर लाइसेंस रिन्यूड एट वंस. या फिर क्या होगा, आपको फौरन अपना लाइसेंस रिन्यू करवा लेना चाहिए, या फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा. करेक्ट, ठीक है. करेक्ट आंसर. यस आमना इजाज, यू वांट टू से समथिंग? आमना, स्पीक अप. राइट डाउन हियर.
dash there is no demand for this type of book, I cannot place an order. क्या होगा? अच्छा ओके आमना, राइट. Dash there is no demand for this type of book, I cannot place an order. Yes, you're right. चूंकि इस बुक की डिमांड नहीं है. एक मिनट, सॉरी. Either could be used here. Either there is no demand. Okay. Reasoning is में either could be used. ठीक है. The conjunction as and since are used to give the reason. As और since reason के लिए इस्तेमाल होते हैं, either result के लिए इस्तेमाल होते हैं. ठीक है. So either is the right option. My grandfather has never flown in an airplane. Does he want to fly in one? क्या होगा? My grandfather has never flown in an airplane. Nor neither के साथ आता है, never के साथ आता है. देख लें. Are you all sure about that? Reason बताएं. Why are you using? रुबा और अलीजा, मारिया, रीजन बताएं. दाऊद, महा, रीजन बताएं. रीजन करें. Why are you using neither और why are you using nor? है ना. देखिए अब ये वहां लिस्ट में मौजूद नहीं थे. कायनात सिकंदर ये वहां लिस्ट में मौजूद नहीं थे. देयर आर लॉट ऑफ लाइक दिस, है ना. बहुत लिस्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की. लुक एट दिस. आई एम जस्ट गूगल इट. लुक एट दिस. देयर इज अ लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. देख रहे हैं 50 से ज्यादा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो ये एक लंबी लिस्ट है जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की है. ठीक है. तो लेट्स सी हियर, यू विल फाइंड आउट. ये देख रहे हैं. तो इतनी बड़ी एक लिस्ट है ये मतलब इससे भी ज्यादा है. तो आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि यू विल फाइंड आउट कि देयर आर मोस्ट कॉमनली जो थे उन पर हमने बात की है, कि वो जो मोस्ट कॉमनली हैं उन पर हमने बात की है. और ये देखें लिस्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. अब इसमें देखें, इसमें और ज्यादा स्पेसिफाई करके कंपैरिजन, टाइम और कंसेशन, रिलेटिव प्रोनाउन, रीजन, कंडीशन. तो ये बड़ा एक अच्छा चार्ट के सेंस में यहाँ बताया गया है कि कौन सा कंजंक्शन जो है वो किस सेंस में यूज हो सकता है. मैनर, रिलेटिव एडजेक्टिव्स, रिलेटिव प्रोनाउन, कंपैरिजन. ठीक है. टाइम. तो ये जो है वो ये देख लीजिएगा, इस चार्ट को देख लीजिएगा. इट विल आल्सो हेल्प यू इन अ ग्रेट रिगार्ड. ठीक है. ये आपको और ज्यादा हेल्प करेगा इसमें कि आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंजंक्शंस हैं ये किन किन मायनों में इस्तेमाल हो रहे हैं. ठीक है. यहां तक कोई कंफ्यूजन? So let's try. My grandfather has never flown in an airplane. Or let's see who will be giving me the right answer. और देखिए यहाँ हमारे पास अच्छा टाइम कम है, अभी 5 मिनट रह गए मेरे पास. मैं सिर्फ आपको गो थ्रू कर देता हूँ. ये देखिएगा एक क्विज यहाँ भी है. वेट हियर डैश आई गेट बैक सून, है ना. ये आप ऑनलाइन इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे. तो ये देखें यहाँ ग्रेड भी आपको ग्रेड भी करेगा ये, और आपको आपके राइट आंसर्स भी बताएगा. इसकी लिंक भी मैं उसमें शेयर कर चुका हूँ, ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ. इसी तरह यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा यहाँ भी एक लिस्ट है, यहाँ भी एक एक्सरसाइज है. कंजंक्शन जॉइन टुगेदर एलिमेंट्स. ये देखें. ठीक है. ये वाली एक्सरसाइजेस भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे, और इसके अलावा भी आप गूगल कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस. ये अगर आप देखें यू विल फाइंड आउट अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स दे ऑफर ऑनलाइन टेस्ट. कंजंक्शंस के ऑनलाइन टेस्ट मौजूद हैं. तो आप क्या कर सकते हैं, हाँ मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ लीजा बानो. ये सारी चीजें जो मैंने शेयर की हैं वो उसमें भी तीनों ग्रुप्स में भी शेयर कर दूंगा. ठीक है. डोंट गेट योरसेल्फ टेंस्ड. तो यहाँ देखिए आप लोग इसको खुद भी गूगल कर सकते हैं. यू विल फाइंड आउट लॉट ऑफ एग्जांपल्स हियर. ठीक है. ये देखिए यहाँ काफी सारी एक्सरसाइजेस मौजूद हैं जो आप सिलेक्ट करना चाहें. ठीक है. कंजंक्शन एंड एडवर्बियल क्लॉजेस, एमसीक्यूज. तो वो आप यहाँ से खोल सकते हैं अपना, आप इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं. और दीज आर द थिंग्स जो आपको हेल्प आउट करेंगी. ठीक है.
हाँ हाँ, मैं डेफिनेटली कर दूंगा। वैसे मैंने तो अभी तक जो मेरे लेक्चर्स हैं उनकी तो सारी वीडियोस शेयर्ड हैं, ठीक है। तो आपको ये बहुत इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, इसको कर सकते हो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? आज हमने कौन सा टॉपिक कवर कर लिया? कंजंक्शंस का टॉपिक कवर कर लिया। नेक्स्ट वीक में मैं आपको खुद एक ईओटी का पेपर सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। एक पेपर मैं ऑनलाइन खुद आपसे लूंगा, जितनी चीजें अभी आपने लर्न की हैं उनको बेस करते हुए we'll be solving a paper in our class, ठीक है। अपनी क्लास में हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे और you will get a clear understanding about, और उसी से रिलेटेड जो भी आपके पास भी अगर कुछ पेपर्स वगैरह हैं तो मुझे पर्सनल वो कीजिएगा, तो with answers और each and everything, तो I'll get it checked। तो the sense is that इंशाल्लाह होपफुली कि हमारी बहुत अच्छी तैयारी होगी और you won't get any problem in this all, ठीक है। Still if you have some confusion regarding, तो I'll try to answer your queries। और सेंस ये है कि इंशाल्लाह क्योंकि आपको लास्ट टाइम उसमें इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली थी, तो अभी जो आपकी ईओटी हुई है उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह मौजूद थी और हमने वही रिपीट की थी ताकि जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो जाए। अब इंशाल्लाह जो आपके पास जो ईओटी आएगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन किसी हवाले से, कोई सवाल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी? ये एक्सरसाइजेस जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी, ठीक है। जो भी चीजें अभी आज हमने पढ़ी हैं उनको लेके आप बड़े आराम से, और ये वाला जो चार्ट है कि आप जरूर कहीं शेयर सेव कर लीजिएगा या मैं इसको ग्रुप में ही भेज दूंगा। इसको इसको जरूर, ताकि आपको पता रहे कि ये किस किस सेंस में आपके पास जो है वो यूज हो सकते हैं कंजंक्शन, ठीक है। मैनर, कंपैरिजन, रिलेटिव प्रोनाउन, रीजन और कनेक्शन, ठीक है, कंसेशन, तो ये तमाम चीजें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम विद यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। अगली वीक में मिलते हैं, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर कोई सवाल है तो वो पूछने फ्रॉम माय पॉइंट। हमारे पेपर्स में नहीं है सायरा, ठीक है। जो भी यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिसेस होंगी उसमें आपको पहले से बता दिया जाएगा। दाऊद, इंशाल्लाह आज आपके साथ सारे लेक्चर्स शेयर हो जाएंगे, जो है वो, तो ये है कि आप लोगों को उसका पता चल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।